Okay, start. Who is reading? Who is reading? Yeah, Ali, start. सर मैं करूँ? Yes, sir. Sir, D95 bacteria, sir. Sir, 9.4. okay, sir. Bacteria role in industry. Bacteria have a very extensive use in industry. You have already read about their role in producing certain types of medicines on a large scale. Medicines Here we are saw, two the more out antibiotics of which are several other made, uses. they are made from bacteria. That means it is called as industrial use. What other uses in everyday life? Different flavors of tea are produced by certain bacteria. Yeah, This the is termed flavored as teas. tea मालूम है ना, curing. अलग अलग फ्लेवर के टीज मिलते हैं. Actually, the bacterial fermentation is done upon that, which gives a flavor to the tea. That process is called as tea curing. Tea curing. Leather tanning is primarily लेदर brought टैनिंग, जो एनिमल का स्किन होता है उसको सुखाते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होता है जिससे उसके ऊपर फर्मेंटेशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर. Leather tanning is primarily brought about by sunlight, but certain bacteria break down the soft perishable parts of the skin. या That is पेरिशेबल पार्ट यानी स्किन के ऊपर का जो भी पेरिशेबल यानी जो डिस्ट्रॉयबल पार्ट होता है, ये भी, ये जब टैनिंग होता है ना, उधर बहुत ही गंदा स्मेल आता है. तो देयर आर सर्टन डिकेइंग पार्ट्स. So those are the perishable parts. They are removed by this bacterial action. So only the leather thickness material remains, and all the waste, that is decayed material, is removed out in the presence of sunlight by the bacteria. That is called as leather tanning. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये all of you all? Yes. Can't hear all of you all. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, proceed. Yes sir. Spoilage of food by bacteria. Many bacteria spoil food, cooked food, milk, fruit, Yeah, vegetables, normally we say ना, etc. फूड पॉइजनिंग हुआ. एक शादी में गए Yes. थे, वहां पर सब लोगों ने खाना खाया, तो उसमें से 50-100 लोगों को एडमिट करना पड़ा, उनको झूला उल्टी हो गया. सुना है ऐसा कभी? Yes, sir. Yeah, that is food poisoning. Food poisoning, and in biology we call it by the terminology called as botulism. Botulism बोलते हैं उसको. याद आ रहा है? Botulism. Will you all remember? सुनाई दे रहा है? Yes. Yes sir. या Yes, sir. botulism. ऐसे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि खाने के अंदर कुछ गिर गया, छिपकली गिर गई, ये गिर गया, वो गिर गया, इसके लिए फूड पॉइजनिंग हुआ. नहीं, शादी में मोस्टली क्या होता है कि अपना खाना होने वाला है शाम को, बफेट डिनर जो होने वाला है वो शाम को होने वाला है, लेकिन जो अपना रसोइया है उसने ना सुबह से या फिर कल रात से कुछ ना कुछ बना के लेके आया था, वो ढोकला वगैरह कल रात को बनाया और आज इधर लेके आया हॉल के अंदर. तो ओवरनाइट में फंगल ग्रोथ हुआ रहेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ रहेगा. हो सकता है कि नहीं? By the process of decay. हो सकता है कि नहीं? मेरे को आंसर तो करो. आर यू ऑल ऑडिबल? Yes sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ या ना तो बोलो तो मैं आगे बढ़ू ना. ऐसा होता Yes, है. sir. तो क्या होता है कि Okay, ऐसा sir. खाना Yes, जो sir. खाता है उसको फूड पॉइजनिंग हो जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉट्यूलिज्म. पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पर. Many bacteria spoil cooked food, milk, fruit, vegetables, etc. by the process of decay, fermentation, particularly during summer. This समर में spoilage ज्यादा may खराब होता sometimes है. be to इसके the लिए बोला गया है extent कि of समर causing food सीजन में poisoning. जितना हो सके उतना, जैसे मिल्क है तो उसको फटाक से बॉईल करके थोड़ा ठंडा करके तुरंत रेफ्रिजरेटर में रख देने का. नहीं तो बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर देयर आर चांसेस दैट द फूड विल बी स्पॉइल्ड. Botulism is a very serious food poisoning due to a special bacterium, sometimes found in tinned and sealed foods. The affected cans get distended at their ends with gas which gushes out on the opening. Such suspected foods should be completely discarded. या तुम लोग जो Therefore, ये जंक फूड खरीदते हो ना, लेज वगैरह खरीदते हो, उसके ऊपर का एक्सपायरी डेट देख लेने का. लेकिन आजकल ये सब कम हो गया है क्योंकि नाउअडेज जो भी पैकिंग आता है दैट इज एल्यूमिनियम फॉइल का. इट इज एल्यूमिनियम सील्ड, कंप्लीटली सील्ड होता है. इसके लिए देयर आर लेस चांसेस ऑफ पॉइजनिंग.
पहले हमारे टाइम पे आता था तो उसका प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक होता था और देयर आर चांसेस कि वहां पर थोड़ा सा भी ओपनिंग रहता था ना तो बिकॉज ऑफ द गैसियस एक्सचेंज उसमें फंगस लग जाता था, बराबर है। तो आजकल बहुत कम हो चुका है ये Therefore, preservation of food and making it free of disease germs is very necessary. Yeah, so how can you make the food disease free or germ free? So there are certain methods of preserving the food. That is why we are going to read about food preservation can be brought about by several methods. So the first method over here, read out. Boiling or heating at high temperatures, कोई भी sterilization, चीज यानी पानी है या फिर मिल्क है उसको एकदम हाई टेम्परेचर पे हीट करो तो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच कैन नॉट सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर। सो व्हेन यू हीट द मिल्क एट अ वेरी हाई टेम्परेचर द हार्मफुल बैक्टीरिया विल बी किल्ड, बराबर है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन। देखो क्या लिखा है, boiling water kills all bacteria except their spores. Higher temperature, about 110 degrees Celsius at increased pressure, as in autoclave or in pressure cooker, kill even the spores. ये ऑटोक्लेव जो है ना, canning industry- ऑटोक्लेव, ये जो ऑटोक्लेव लिखा है ये ऑटोक्लेव्स आर यूज्ड मोस्टली इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑटोक्लेव का एक डब्बा होता है जैसे इडली बनाने का जो ये कैसा होता है बर्तन, उस टाइप का एक कंटेनर होता है कनेक्टेड टू द सर्किट, उसके अंदर सब इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग रखते हैं, क्लोज करते हैं, चालू करते हैं। तो ऑटोक्लेविंग अंदर एक टेम्परेचर हाई डिग्री टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और जो भी पॉइजनिंग मटेरियल है उसके अंदर अपना मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर, तो ऑल दोज आर किल्ड बट एक्सेप्ट द स्पोर्स आर लेफ्ट। जैसे यहाँ पर लिखा है ना स्पोर्स आर लेफ्ट, लेकिन अगर ये स्पोर्स मैच्योर हो जाएगा तो वापस से और फंगल ग्रोथ होगा। तो अभी ये स्पोर्स को किल करने के लिए और एक नया मेथड भी यूज करना पड़ेगा। तो ऑल ये जो एक एक मेथड दिया हुआ है, हियर डिफरेंट मेथड्स आर गिवन, स्पेसिफिक मेथड्स आर गिवन, बट वी कैन कंबाइन द मेथड्स एंड वी कैन प्योरीफाई द मटेरियल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके देखो, Yes, sir. The canning Yes, sir. industry employs heating to kill bacteria before packing and sealing food. या कैनिंग इंडस्ट्रीज जो कैंस वगैरह बनता है, आजकल तुम लोग क्या बोलते हो, पीते हो बिग बुल, क्या पीते हो? Big bull. बिग बुल ना, नहीं सर, बिग बुल तो मूवी है और रेड बुल होता है। रेड Bull है। वही ना, वो भी बिग बुल बोल रही है कोई तो। और एक कोई तो अभी नया ड्रिंक निकला है, कोई तो छोटा सा पैकिंग वाला कोक वगैरह कुछ आया है क्या नया? Sting. 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 स्टिंग, अच्छा वो Yes, sir. गर्लफ्रेंड को कंधे पे चढ़ा के लेके जाता है वो हाँ सर, वही वही वो वो लिफ्ट तो बॉटल आता है ना, कंटेनर थोड़ी है। कैन वाला पेप्सी का कैन कैसे आता है? Sir, big Sir, bull है। आएगा। चलो इन शॉर्ट ऐसे कैन मटेरियल होता है ना, उसको पहले क्लियरली बॉईल किया जाता है और उसके अंदर बाद में कंटेनर में फिल किया जाता है और बाद में उसको फ्रीज करके ठंडा किया जाता है। यस, कंटिन्यू। Salting. Salting is a common method of preserving foods like fish, pickles, etc. for long periods of time. By mixing these foods with salt, their biodegradation is prevented under normal conditions. Treatment with salt for preservation purposes is called curing. क्योरिंग ये भी एक टाइप का क्योरिंग है, मतलब प्रिजर्वेशन मेथड। जैसे घर में तुम लोग अचार वगैरह बनाते हो, तुम लोग होता है कि नहीं? बाकी सब लोग हाथ ऊंचा करो, थम्स अप करके बताओ मुझे कि किसके किसके घर में साल भर का अचार बनता है। जो भी साल भर का अचार बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर प्लेंटी ऑफ सॉल्ट डालते हैं। तो दिस सॉल्ट इज गोइंग टू एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव एंड बिकॉज ऑफ विच अपना जो खाना, अपना जो अचार बनाया हम लोगों ने, इट विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम, मतलब पूरा साल भर वो सर्वाइव करता है, नहीं तो खराब हो सकता था। यस, Next is dehydration or drying. Most microbes cannot grow without water. डिहाइड्रेशन, देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जिसको जितना सूखा रखोगे उतना वो अच्छा रहेगा, अगर मॉइस्चर लग गया तो वो खराब हो जाएगा। पापड़ दादी माँ पापड़ बनाती है, गच्ची पे टेरिस के ऊपर जाके सुखाती है धूप में, तो ये सब क्या होता है? ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, उसके अंदर का सब पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी उसको साल भर रखो ना, खिचिया पापड़, तुम लोग मारवाड़ी लोग तो खिचिया पापड़ बहुत खाते हो, बराबर ना? ये खिचिया पापड़ क्या होता है? धूप में सुखाया हुआ है ना कंप्लीटली,
यस सर। हाँ, तो Yes, sir. इसके लिए वो तुम्हारे घर में पड़ा है, लेकिन अगर तुम फ्रिज में रखो 1 दिन 2 दिन, अगर मॉइस्चर लग गया तो ये खराब हो जाएगा, समझा? तो देयर आर सर्टेन फूड मटेरियल्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी ड्राइड, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। देखो क्या लिखा है, Therefore, dehydration by drying of food such as grains, meat, fish, vegetables is an effective method of preservation. Dried milk powder is another excellent example. या समवन हैज स्टार्टेड विद द म्यूजिक। ओके, द फूड आइटम्स जैसे ग्रेन्स, हम लोग साल भर का राशन भराते हैं, साल भर का राशनिंग भराते हैं घर के अंदर, लेकिन देयर आर चांसेस कि उसको मॉइस्चर लग जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, कभी भी ऐसा पता चले कि इसको मॉइस्चर लगने वाला है तो तुरंत ग्रेन्स को हम लोग डब्बे में से एक कपड़े के ऊपर डाल देते हैं और 2 दिन धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं ताकि वो ग्रेन्स खराब ना हो। यस, Yes, sir. Yes, sir. देयर इज सम डिस्टर्बेंस। Yes, sir. यस। Irradiation. Radioactive radiation has been tried. Irradiation. Radioactive radiation has been tried in sterilizing certain foods without themselves becoming radioactive, but the practice is not yet in much use. Similarly, ultraviolet light is found useful not only in sterilizing the air in schools, hospitals, and factories, but also in killing mold spores in bakeries. या पहले तो क्या करते थे, रेडियोएक्टिव रेडिएशंस, कौन सा मालूम है, गामा रेडिएशंस जो है ना, गामा रेडिएशंस, ये वेजिटेबल्स के ऊपर मारा जाता था, लेकिन ये रेडियोएक्टिव रेडिएशंस जो है ना वो फ्रूट के अंदर या फूड वेजिटेबल्स के अंदर नहीं जाएगा, खाली दे विल किल द हार्मफुल पार्ट्स। या फिर जैसे तुमको पता रहेगा तो पोटैटो जो होता है उसके यू कैन सी द आईज बर्ड्स होता है, मालूम है, ऊपर पोटैटो के ऊपर। Yes, sir. हाँ सर, कितने बार ग्रीन कलर अगर का उसको ऊपर निकल पानी लग गया, मॉइस्चर मिल जाएगा तो वहां से वापस से नया प्लांट के जैसा, लीफ के जैसा आ जाता है। यस और नो? Yes, Yes, sir. हाँ, तो Yes, ऐसे sir. पोटैटोस के ऊपर अगर ये रेडिएशन अगर पास किए जाए, गामा रेडिएशन अगर जब पास करते हैं उसके ऊपर, तो जो बर्ड जो होते हैं वो एकदम क्लोज हो जाते हैं, तो उसके अंदर से वापस से कोई प्लांटलेट नहीं आएगा। तो दिस वे यू कैन प्रिवेंट द पोटैटोस फ्रॉम गेटिंग रिप्रोड्यूस्ड। ऑल्सो वी यूज सम अल्ट्रावायलेट लाइट्स। अभी आजकल कोरोना में हम लोग ने ये बहुत यूज किया, इंस्टेड ऑफ स्टरलाइजिंग यानी स्प्रे ये वो करने से अच्छा हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट का वो फ्रेम लेके आते हैं, और वो अल्ट्रावायलेट लाइट जहां पे भी रूम में रखेंगे ना, तो दे किल ऑल द स्पोर्स एंड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन वायरसेस आर किल्ड बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके सर, जो सर, आपने तो वो पोटैटो जो का बोला, लेजर फिर से बोलो ना। वन एट अ टाइम। सर, जो आपके पोटैटो का बोला, फिर से बोलो ना। क्या बट आपने क्या बोला? पोटैटो का जो आइज होता है ना, आइज, देयर आर चांसेस कि जब उसको मॉइस्चर लगेगा तो उसके आइज में से यानी जो बर्ड्स है ना उसके अंदर से लीफलेट की तरह निकलना चालू हो जाएगा, और एक बार वो निकल गया तो हम लोग वो पोटैटो को डिस्कार्ड कर देते, फेंक देते। तो उससे अच्छा क्या होता है, ये रेडिए अगर पूरा जो पोटैटो है, जो भी स्टॉक है अपने पास मार्केट के अंदर, जो भी स्टॉक आता है, तो वो लोग पहले उसके ऊपर रेडिएशन पास करते हैं। जैसे रेडिएशन उसको पास करते हैं तो ऑल द बर्ड्स जो होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं, तो वहां से अभी मॉइस्चर, अभी ये प्लांटलेट नहीं निकलेगा और वो पोटैटो खराब नहीं होगा। ओके, तो प्लांटलेट होने से पोटैटो खराब हो जाते हैं? हाँ खराब हो जाता है वो ऑलरेडी, मतलब वो उसके अंदर एंजाइम्स अलाइव हो जाते हैं, तो वैसा खाने से वो थोड़ा पॉइजनिंग हो जाता है, वो पोटैटोज अच्छे नहीं रहते। ट्राई एंड अवॉइड सच पोटैटोज। ये प्लीज। So what are gamma radiations? Hello. गामा, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन, 3 टाइप के रेडिएशंस होते हैं। गामा रेडिएशंस जो रहते हैं वो हाईली पोटेंट नहीं रहते, खाली दे डू नॉट हैव मच पेनिट्रेटिंग पावर, तो खाली वो सुपरफिशियली एक्ट करते हैं एंड दे किल द जर्म्स। Pasteurization. Pasteurization is a technique of partial sterilization applied usually to milk. हम लोग The को मिलता है milk ना is आजकल heated to a गोवर्धन temperature. मिल्क, गोकुल मिल्क, दे आर पैस्चराइज्ड मिल्क। Yes, sir. लिखा रहता है हाँ, उसमें. डीमार्ट में मिलता है पैस्चराइज्ड मिल्क, पीने में भी बहुत अच्छा लगता है, और जब हीट करो, बॉईल करो, तो उसके अंदर से मलाई भी ज्यादा निकलता है। यस,
The milk is heated to a temperature of about 60 degrees Celsius for a period of 30 minutes and then chilled quickly. ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? Pasteurization kills the ये क्यों कर majority. रहे हैं ऐसा? क्योंकि बैक्टीरिया को हम लोग उल्लू बना रहे हैं, बैक्टीरिया को हम लोग फंसा रहे हैं। क्यों फंसा रहे हैं? पहले हम लोग ने उसको हीट किया 60 उसके बाद से डिग्री ठंडा कर तो दिया। बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली अपने आप को तैयार कर रहा है कि ये भाई अपने को मारने के लिए टेम्परेचर हाई कर रहा है, तो क्यों ना मैं बॉडी को एडजस्ट कर लूं अपने आप को। तो जब वो इतना टेम्परेचर को एडजस्ट करने का कोशिश कर रहा है, उतने में तुमने सडनली उसका हीट स्टॉप कर दिया और सडनली उसको फ्रीजिंग में डाल दिया। तो ये जो सडनली हीटिंग एंड सडनली कूलिंग करते हैं ना, तो बैक्टीरियाज आर नॉट एबल टू एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर सो क्विकली एंड देयरफॉर दे डाई। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, continue. Pasteurization kills the majority of the bacteria that are present, including the disease-causing ones. Yes. Remember, pasteurization does not completely sterilize milk. Pasteurization sir. does not completely sterilize milk. हाँ, तब भी मेरी मम्मी कोई भी टाइप का दूध अगर मार्केट से लाती है तो पहले एक बार जैसे घर पे आता है तो उसको एक बार तो गर्म करती ही है वो, चाहे वो Yes, sir. हाँ, मैंने भी देखा। Yes, sir. क्योंकि वी कैन नॉट टेक अ चांस कि उसके अंदर बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो बेटर यू बॉयल इट। जो यहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है कि पैस्चराइजेशन मींस नॉट कंप्लीटली स्टरलाइज्ड मिल्क। इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मिल्क। द मिल्क इज अ पेरिशेबल आइटम, वो जल्दी से खराब हो जाएगा। तो खराब नहीं होने के लिए वी फर्स्ट बॉयल द मिल्क एंड यूज इट थ्रू आउट द डे। बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? Our lecture will end in 1 or 2 minutes, so you can end it and again rejoin. कोई कुछ पूछा? सर बोल रहा है कि लेक्चर का अभी निकल मतलब एंड होने वाला है 1-2 मिनट में, इसलिए अभी रीजॉइन करने का ये कर लो, एंड कर लो। रीजॉइन हाँ करने का सर, मुझे भी डाउट था एक। सर मुझे भी डाउट था, तो सर हम फुल्ली ये उसको मारते क्यों नहीं बैक्टीरिया उसके अंदर के? क्या मिल्क के अंदर का बैक्टीरिया पहले से क्यों नहीं मार देते, मतलब जो फैक्ट्री वाले? पार तेरे बाजू में कोई बैठा है? नहीं सर। तो अपने आप को एक थप्पड़ मार पहले। क्यों सर? मार। वीडियो मारा। चालू करके मारा। ऊपर हाँ, का सर। फर्स्ट पॉइंट पढ़, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट। बैक्टीरिया कब किल होते हैं मिल्क के अंदर के? व्हेन इट इज हीटेड अप टू certain temperature. ब्रैकेट में क्या लिखा है? 110. फर्स्ट पॉइंट का ब्रैकेट में क्या लिखा है? अरे सर ज्यादा जोर का मार दिया लगता है। फर्स्ट पॉइंट का ब्रैकेट में क्या लिखा है? वो टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है। सर कहाँ पर सर? पैसेशन में कुछ ब्रैकेट में नहीं है। तो कौन सा चैप्टर खोला है? ये क्या लिखा है? मैं इस पे स्टरलाइजेशन का हायर टेम्परेचर अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस। अच्छा वो वाला, मुझे लगा पैसेशन में का। तो व्हेन इट इज 110 डिग्रीज तभी जाके पूरे बैक्टीरिया किल होते हैं। और पैस्चराइजेशन तू कितना टेम्परेचर Okay. तक लेके जा रहा है? 60 डिग्री। खाली 60। तो मरेगा क्या पूरा का पूरा बैक्टीरिया? हाँ सर वही बोल रहा हूँ सर। तो मिल्क को 110 में क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हाँ, तो बॉयल करना, मतलब घर पे आएगा बॉयल हो फिर जाएगा कर। इसलिए। जब तू बॉइलिंग घर पे करता है तब तू 100 प्लस पे करता है। Okay, so we now start with the 6th point, that is there are certain bacteria, there are certain microorganisms which cannot survive at a very low temperature. When I say a low temperature, it is 0 or -1, -2, -3, -4, -5 or in minus. Negative temperatures, that is in your refrigerator that you get temperature is your negative temperature. So at a very high at a very low temperature, that is the cold climatic places, the food preservation is very good at that temperature. So there are certain food items. Let us read out which food items should be freeze so that they can remain perishable for a long interval of time. Yeah, please read it. Refrigeration, that is cold temperature.
refrigeration, that is cold temperature. Microbes, bacteria, and molds do not grow and multiply at or below the freezing point of water. Chilling of milk and keeping vegetables and fruit in a cold storage are popular methods of preserving them. Frozen fish or frozen vegetables keep fresh for a long time. Yeah, so this vegetables, certain fruits, listen to it what I'm saying, certain fruit items. If you keep mosambbi and santra, oranges and mango, ये क्या बोलते हैं उसको, mosambis. If you keep them in refrigerator for a long interval of time, their internal citric acid, that is the vitamin C content, will be lost out. ये खराब हो जाएगा. So only certain fruit items should be kept at a lower temperature. ये yeah. Domestic refrigerator cools at 0 to minus 5 degrees Celsius for short-term storage. Deep freezing cools at minus 20 degrees Celsius to minus 30 degrees Celsius for long-term storage. या लॉन्ग टर्म स्टोरेज यानी जैसे कि फिशेस वगैरह होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसपोर्ट होते हैं, या फिर मिल्क जो होता है वो अलग अलग स्टेट से यहाँ तक पहुंचता है, तो यहाँ तक लाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज मेड. That temperature is around minus 20 to minus 30 degrees Celsius. Yeah. Strong concentration. The next point and is going to chemicals. tell you about strong concentration and chemicals. Sugar and salt. Sugar and salt. They are the most highly concentrated materials. They can preserve your pickles and achars and jams for a longer interval of time. So they act as a best natural preservative. But instead of that, if you want to use some artificial thing, the artificial thing is sodium benzoate. We add sodium benzoate so that the food item remains eatable, edible for a long interval of time. Please read this. Strong concentration in chemicals. Jams and pickles do not get spoiled. They have a strong concentration of sugar and salt respectively. The increased concentration of the solutes causes plasmolysis and death of any bacteria or mold that may creep in. Yeah, मतलब प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या होता है, अगर कोई बैक्टीरिया अगर अंदर घुस भी गया है, अगर बैक्टीरिया अगर है तो बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड शुगर से क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बैक्टीरिया के अंदर का जो भी पानी है, whatever water storage is inside the bacteria's body, it will be sucked out. Plasmolysis मतलब पूरा का प्लाज्मा, पूरा का water material, the liquid material from the bacteria's body will be sucked out and the bacteria die there and there. That's why we put salt and sugar in the jams and pickles. देखो. Yes. Sometimes preservatives like sodium benzoate are also added to tinned foods and squashes. Yeah. ए मुझे ये बताओ ना, तुम लोग मुरम्बा खाते हो क्या? मुरम्बा Nice. हाँ सर वो मीठा मीठा खाया है? हाँ सर, आज ही खाया हुआ खाया है। मैंने, वो कैरी का पूरा बनता है के. सर उसको भी धूप में रखना पड़ता है थोड़े दिन. हाँ सर, उसको भी थोड़ा हाँ थोड़ा सर, दिन वैसे धूप में बनाते रखना हैं. पड़ता है. हाँ हाँ सर, सर, जब भी उसको नानी हो भी जाता है धूप तभी में रखना बनाते हैं. पड़ता है. क्या? उसको थोड़ी देर धूप में रखना पड़ता है ना. ना ना ना, धूप में नहीं. बहुत मतलब हाँ सर, बहुत मस्त लगता है. हाँ मेरे सर, घर धूप में पूरा रखना पड़ता है. साल भर का बनता है, पूरा इतना जार बना भर के, बहुत मजा आता है खाने सर के वो साथ. एक जोक भी तो आया था. बोल सर एक बोल. जोक भी आया था हाँ? कि जो मतलब है ना, जो अमेरिकन है ना, हाँ? वो वैक्सीन बना 2021 में वैक्सीन बनाने की ट्राई कर रहे, और जो इंडियंस है ना वो 2022 के लिए अचार बनाना ट्राई कर रहे. ओके, चलो कंटिन्यू. 9.6 बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स के अंदर कौन से डिजीज होते हैं जरा देख लो. Two very common diseases of plants caused by bacteria are black rot of mustard and cauliflower and bacterial blight of cowpea, lobia. दैट इज कॉल्ड एज लोबिया. खाली ये डिजीज का नाम याद रखो और किसके अंदर होता है. मस्टर्ड के प्लांट के अंदर होता है, कॉलीफ्लावर गोभी के अंदर होता है, और ये पी जो वटाना होता है ना, वटाना, उसके अंदर दे गॉट अ डिजीज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ब्लाइट. और ये जो मस्टर्ड और कॉलीफ्लावर है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज ब्लैक रॉट. Yeah, in animals, In animals, two common bacterial diseases of cattle among
animals are anthrax, Anthrax swelling में on क्या होता body है? and Anthrax is also produces a type milky of tuberculosis ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी जो होता है वो स्वेलिंग हो जाता है एंड रिड्यूसेस द मिल्क यील्ड, यानी ये काउस, बफेलो, ये जो काउस वगैरह जो मिल्क एनिमल्स बोलते हैं ना, द मिल्क गिविंग एनिमल्स जो होते हैं, इफ दे सफर फ्रॉम दिस डिजीज, देयर क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो वो लोग देते हैं वो बहुत कम हो जाता है. Sometimes the animals can also suffer from tuberculosis. In that their lungs are affected and they have the cough. Accordingly, they have the cough, but that cough we cannot feel it. सर Only a veterinary doctor can feel it. Yeah. सर अगर कोई एनिमल को ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो कैसे पता चलता है? Listlessness. Symptoms You know क्या what है? is listlessness? नहीं, नो नहीं, वो No, लोग क्या sir. होता है, बैठे रहते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो लोग का मिल्क कॉन्सेंट्रेशन, जो वो लोग मिल्क देते हैं वो मिल्क भी बराबर से क्वांटिटी में नहीं आ रहा है. They remain Okay, lazy, sir. lethargic, they do not get up, they do not eat the food, वो लोग का वजन कम हो जाता है, तो they come to know that it is tuberculosis. Yeah, proceed. In humans, some common bacterial diseases of humans are as follows: whooping cough. Whooping cough cholera, मैंने बताया था, लास्ट टाइम tuberculosis. आपको बताया था. सर वो कंटिन्यूअसली हाँ, करते हैं. नहीं, कंटिन्यू कफ नहीं करते वो लोग, जब कफ करते तो वूफ निकलता है. नहीं दिया? Yes, सर मेरे को लगा अब आपको सच्ची में हो रहा है. नहीं नहीं नहीं, ये वूपिंग कफ ऐसे होता है. दूर तक जाता है. दैट इज कॉल्ड वूपिंग कफ. ये वूपिंग कफ का दूसरा नाम इज पर्ट्यूसिस. पर्ट्यूसिस याद रहेगा? Yes, sir. याद रहेगा? Yes, sir. एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना है मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बोलना है. आर ऑल ऑफ यू आर अवेक? यस सर, Yes, sir. हम लोग डीपीटी वैक्सीन लेते हैं. डीपीटी पता है क्या? सर पता नहीं पता सर. हम लोग डीपीटी नाम का एक वैक्सीन लेते हैं. डीपीटी. अगर नहीं सर हम लोग पता है मतलब तो डॉक्टर्स. लिख लो वहां पर डीपीटी. सर हम लोग मतलब डॉक्टर्स के सब लोग. हाँ, हम लोग मतलब डॉक्टर्स के सब लोग. सर वो तीन डिजीज के लिए एक साथ वैक्सीन होती है वो ना. बराबर है. तुम लोग बुक में लिखो ना जरा यार. डीपीटी लिख लो. डीपीटी लिखा? Yes, sir. हाँ, डी का मतलब ये डिफ्थेरिया. पी का मतलब पर्ट्यूसिस. पर्ट्यूसिस और वूपिंग कफ एक ही है. और टी मतलब टीटेनस. मतलब ये जब डीपीटी वैक्सीन आपने लिया ना, तो उसमें 3 बीमारी एक साथ में कवर हो रही है. आपका डिप्थेरिया, आपका वूपिंग कफ और आपका टीटेनस. ओके Yes, sir. ओके. नेक्स्ट इज कॉलेरा. कॉलेरा के लिए कोई वैक्सीन नहीं है. ट्यूबरक्लोसिस के लिए अभी ये मैंने होमवर्क दिया था आपको, बीसीजी का BCG. खाने के लिए. तो बीसीजी इज अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस. टाइफाइड के लिए हम लोगों ने कल पढ़ा था टीएबी वैक्सीन. न्यूमोनिया के लिए इन्फ्लुएंजिनम, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन होता है. टीटेनस, न्यूमोनिया का अभी लेटेस्ट आया हुआ है, अभी उसके पहले नहीं था. ओके Yes, sir. ओके. जैसे शुड आई प्रोसीड? यस सर. ओके नाउ लिसन टू मी. आज ये 2 साल से जो हम लोग कोरोना के लिए फाइट कर रहे हैं, कोविड के लिए फाइट कर रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ चाइना. वहां पर आर्टिफिशियल वायरस, ये वायरस बनाया गया हुआ है और उसका एंटीडोट भी बनाया वुहान में गया ना हुआ सर. है. वुहान लैब के अंदर ये बैक्टीरिया जनरेट किया गया है और उसका पहले ही मेडिसिन वैक्सीन बना दिया गया है. वो लोग ने बनाया हुआ है. इसके लिए चाइना के अंदर ज्यादा लॉसेस हुआ ही नहीं है. लेकिन जब दूसरे कंट्रीज के अंदर जब भेजा है, तो हम लोग कंट्रीज में अभी हम लोग को पहचान कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग अभी वैक्सीन उसका बना रहे हैं, और हम लोग अभी 2 साल के बाद अभी थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए हैं. तो ये एक टाइप का वॉर है. ये एक टाइप का वॉर है. चाइना कैन नॉट डायरेक्टली declare a war on India. China knows, even America knows that India is going to be a superpower within few years, and that's why they want to harm the other countries. And China has taken up this protocol of
harming or destroying the economy of a country. तो दिस इज अ टाइप ऑफ बायो वेपन, इसको बोलते हैं बायो वेपन। इसको एक वेपन की तरह यूज किया है उन लोग ने वायरस को यहां पर भेज के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो रीड करो यहाँ पर क्या लिखा है। Bioweapons. It has come to knowledge that some countries may be preparing germ bombs, which, when exploded, may simply release disease germs such as anthrax bacteria, which may take epidemic shape and cause widespread death generation after generation. या अगर ये एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया अगर एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गया तो फिर इट कैन किल मैनी पीपल। जैसे कोरोना कोविड ये जो सार्स वायरस जो घूम रहा है, इट इज अफेक्टिंग एनीवन एंड एवरीवन एनीवेयर। पता ही नहीं चलता कि इसको होगा नहीं होगा, ऐसे मतलब अनफॉर्चुनेट कि इसको कभी हो ही नहीं सकता लेकिन उसको हो गया, ऐसे हालत हो गया। तो सच इज द वायरस। गेटिंग इट? Yes, sir. हाँ फैमिली मैन देखा? फैमिली मैन पिक्चर, फैमिली मैन ना? हाँ फैमिली मैन सर वो Yes, सीरीज है। sir. सीरीज, हाँ वेब सीरीज देखा? सीरीज हाँ सर देखा मैंने। यस सर, सब उसके लोगों ने लास्ट देखा है एपिसोड क्या? दिखाया ना। कितने लोगों ने देखा? नाम बोलते जाओ। पार्थ तूने देखा, और यस सर मैंने भी। नाम बोल। पक्षाल। अक्षल, और सर आपने देखा? मैंने देखा। उसके अंदर देखा कि नहीं? केमिकल फैक्ट्री के अंदर वो ब्लास्ट करता है सेकंड सीरीज में। यस सर यस सर यस सर। हाँ, तो उसके अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था कुछ सालों पहले, यानी 1984 में, यस 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। वहां पर केमिकल फैक्ट्री के अंदर से कुछ गैस लीक हो गया था बाय मिस्टेक। हाँ बाय मिस्टेक, ये कोई टेररिस्ट अटैक वगैरह नहीं था, बाय मिस्टेक भोपाल गैस ट्रेजेडी। वहां से MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड करके गैस रिलीज हो गया था, एंड which was spread in the surrounding area, और वो सराउंडिंग एरिया से पूरा फूड चेन के अंदर एंटर हो गया, और वो फूड चेन से जो भी लोगों ने वो पानी या वो खाना खाया, those people were affected। मतलब ये भी एक टाइप का बायो वेपन हो गया। सोचो अगर ये टेररिस्ट अटैक होता तो वो पूरा का पूरा जगह में स्प्रेड करवा देता था, तो सोचो वो पूरा स्टेट के अंदर कितने लोग मरते थे। बराबर है? और एपिसोड 1 नहीं, सीरीज 1 में वो लोग ने कौन सा बताया था? वो तो कौन सा लाया था वो बॉर्डर से सिलेंडर्स वो लेके आ रहा था, वो क्या नाम है उसका? करीम के कासिम, साजिद लेके आने वाला था वो। यस साजिद वो ट्रक में भर के लेके आना था ना, वो नाइट्रिक एसिड के नाइट्रिक ऑक्साइड ला रहा था वो। यस सर। अरे क्या पिक्चर देखते हो, तुमको वो भी नहीं मालूम है? नाइट्रिक ऑक्साइड कुछ लेके आता है सर वो, पहला मैं भूल गया। वो यहाँ पर इंडिया के अंदर वो लोग एक्सप्लोर करने वाले थे, लेकिन वहां का वहीं हम लोग के जो CBI वाले होते हैं, ये सॉरी CBI नहीं, वो क्या था, टास्क फोर्स Border. टास्क फोर्स, वो लोग उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं और वहां का वहां एक्सप्लोजन को रुका देते। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. या यस सर। दिस वाज ऑल अबाउट। ईशा अभी ज्वाइन कर रही है, वाह रे वाह, ये कब की थी? ये नेक्स्ट सेशन में इधर आने का मैथ सर आप बोलो ना अपने रिकॉर्डिंग लेक्चर स्टॉप को। करो। आई विल बी टॉकिंग विद सर रिकॉर्डिंग स्टॉप।